Hi guys, my name is Rohit, and today I am here to discuss about the topic called cost of capital. What is the cost of capital? Cost of capital is to be the anything that need to be paid by the company to retain the fund in that particular organization. If I simplify the entire things, cost of capital is nothing but the interest that is paid to the lender. Whether here who is the lender is the equity shareholder, whether it is preference shareholder or डिवेंचर होल्डर. तो जब वो पैसा तुमको दे रहा है तो दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू एज ए पे एज ए इंटरेस्ट और वेदर डिविडेंड. तो जो पैसा which money we need to pay to them for retaining that fund, that is called the overall cost of capital. For example, they suppose one give you a 1 lakh rupees, and in against that they charge a 10% interest, that is 10,000. So that is 10,000 is your cost of capital. So there is a three sources of from which we are getting the capital. One is a equity share, preference share, and debenture. So our main objective is to be the in any financial managers, the main objective is to be the reducing the cost of capital, because it is the first thing which is after that the company is investing that particular fund. So raising money is the first step of the financial management. So the effect of the cost of capital is on capital structure, because if you cannot carefully manage or carefully structure your overall capital, then it will be hampered your investment decision also. So first capital structure, another is the investment decision, and another is it also measured to performance of a top management. Because how should you know that your fund managers will work efficiently? Because you judge it with the help of cost of capital. If the particular managers is able to manage successfully to reduce or remain lower the cost of capital, then it is ensured that that particular management is work efficiently. But if you notice that the cost of capital of a fund is very much high and your investment return is not made to cover that particular cost, then you can assume that your manager will be not work very much efficiently. ठीक है, मतलब अगर कॉस्ट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से रिटर्न हुआ तो ठीक है, मगर अगर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम है, कॉस्ट का रिटर्न मतलब कॉस्ट ज़्यादा है, तो यू मे फेस द लॉस एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी डम. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट there is a four component in cost of capital. One is a preferential capital, another is a debenture, another is a retained earning, and equity share. Now anyone can ask me कि first three, that is preference, debenture and equity is okay, ठीक है, because we lend from outside, we borrow from outside, sorry. But what about the reserve? That is retained earning is nothing but the reserve. In reserve we not borrow from outsiders, because it is our internal profit that earned by the company by investment, by doing the business. So why should we calculate the cost of retained earning? Why what is the cost actually? Because we need to be not pay anything for that particular amount, because it is the company's internal profit. But the answer is that you forget about that the equity shareholders, actually the retained earning and equity share capital is entire called a equity shareholders fund. So indirectly that particular fund is also owns to the equity shareholder. So that's why we are calculating the particular cost, because these two things are equity shareholders asset. मतलब जो आखिरी में बचता है वो इक्विटी शेयर के लिए मतलब उसका एसेट होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या क्या क्लेम करता है कंपनी में. वन इज ए इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अनदर इज ए रिजर्व. तो ये रिजर्व का भी एक मतलब कॉस्ट होता है. कैसे? देयर इज ए टू टाइप ऑफ कॉस्ट. वन इज ए एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड अनदर इज ए इम्प्लिसिट कॉस्ट. व्हाट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट? The explicit cost is the specific cost to
रिटेन दैट पर्टिकुलर फंड इन द पर्टिकुलर कंपनी। मतलब वो जो फंड हमने लिया है ना, उसको कंपनी में रखने के लिए जो कॉस्ट, मतलब जो खर्चा, जो कुछ देना पड़ता है, उसको हम स्पेसिफिक कॉस्ट बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दैट इज द डायरेक्टली कॉस्ट। दिस 1, 2 एंड 4 इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब ये हम लोगों को रिटेन करने के लिए कॉस्ट देना पड़ता है। मगर व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट इज टू बी दैट द सपोज आई चूज वन प्रोजेक्ट, ठीक है, मान लो मैंने किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट चूज किया है, एंड आई हैव ऑल्सो वन मोर ऑप्शन टू इन्वेस्टिंग द पर्टिकुलर मनी इन दैट प्रोजेक्ट। मतलब मेरे और एक ऑप्शन है, मैं और एक जगह प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एंड बट ऑब्वियस दैट वी गेट ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बट दो वी इन्वेस्टिंग इन वन एरिया वी कांट गेट अ रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अनदर प्रोजेक्ट, सो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब मोर लाइक अ क्या बोलूँ, कॉस्ट में इसका नाम है, इट इज कॉल्ड इम्प्यूटेड कॉस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी नॉट इम्प्यूटेड कॉस्ट, इट इज कॉल्ड इन अ कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो द सेम थिंग इज, मतलब जो रिजर्व होता है, मान लो मैंने वो बिजनेस पे मतलब ऐसे रिटेन रख दिया, तो रिजर्व के लिए कैसे एप्लीकेबल होता है वो थोड़ा समझा रहा हूँ कि मान लो मेरे पास 1 लाख का रिजर्व है, तो मैंने ऐसे रख दिया, कंपनी के अंदर है, मैंने कहीं पर इसको इन्वेस्ट नहीं किया, तो मगर सपोज आई हैव अ ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर वन प्रोजेक्ट दैट गिव मी अ रिटर्न ऑफ 10%, so though the fund is still in my hand, I don't invest it in a one project, I lost the opportunity of getting particular 10% return। मैंने वो इन्वेस्ट नहीं किया तो 10% का अपॉर्चुनिटी का मेरा लॉस हुआ, तो दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिजर्व, बट इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज इम्प्लाइड इम्प्लिसिट कॉस्ट, नॉट एक्सप्लिसिट, ठीक है। इट इज द बेसिक थिंग्स, एंड नेक्स्ट इज अ फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, इट इज लिटिल बिट फॉर्मूला सेंट्रिक, तो यू नीड टू बी मग अप द एंटायर फॉर्मूला, एंड इट इज वेरी मच ईजी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी द फॉर्मूला PE, that is price to earning ratio, that is market price per share, the formula is market price per share divided by earning per share. What it represent? It representing that for 1 rupees earning, how much I need to pay to the particular company. For example, suppose my companies, if anyone want to write what I said, then definitely you can write, okay, whether it is in a book, a blank page, or in your book। तो PE का मतलब होता है कि मैंने 1 रुपया अर्निंग के लिए कितना टाइम मेरे को देना, मतलब पैसा देना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी कंपनी का एक शेयर का मार्केट प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, और उसका अर्निंग है 10। तो हियर यू नोटिस दैट फॉर गेटिंग द 10 रुपीज अर्निंग ईयरली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, हाउ मच आई शुड टू नीड टू बी पेड 100। So how much times I need to be paid? 10 times, ठीक है। मगर फॉर एग्जाम्पल you have another option, same, you got a 10 rupees but you need to be paid a 50, so how much time? That is 5 times। So what option you should choose? I am sure that you're choosing the second option because it is little bit cheaper, you get a same return but you need to spend half of the original, मतलब 100 के जगह तुमको 550 मतलब स्पेंड करना हो रहा है, तो तुम अर्निंग तो सेम हो रहा है, तो तुम सेकेंड ऑप्शन ही चूज करोगे। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ P, मतलब फॉर गेटिंग अ 1 रुपीज अर्निंग, हाउ मच यू नीड टू पे, हाउ मच टाइम्स यू नीड टू पे, ठीक है। अब अगर मैंने ये 1P को नीचे लेके गया, 1 डिवाइड बाई P1, इस तरफ भी इसको नीचे लेके गया, तो क्या होगा? EPS डिवाइड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। इट इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दैट इज, सपोज मार्केट प्राइस पर शेयर इज 100 एंड अर्निंग पर शेयर इज 10, then you need to be paid at 10%. So in that way they calculate, that is here you can notice
that is KE is equal to earning divided by E divided by P. 100, you can directly remember that particular formula also, doesn't matter, ठीक है. तो KE is equal to E divided by P into 100, where the E is equal to earning, P is equal to market price per share, ठीक है. मतलब earning divided by market price per share. अच्छा, अगर ग्रोथ हुआ तो ऐड कर देंगे G, डिविडेंड हुआ तो सेम इन आई मीन just replacing that particular earning with the dividend, and the market price is same plus growth. It is the formula of CAPM I discussed in earlier. That is, what is CAPM? CAPM is equal to nothing but the RF, risk-free rate, plus beta multiplied by market return minus risk-free rate. That is called risk-free premium. ठीक है, मैंने ये इसको डिटेल में डिस्कस किया था. नेक्स्ट, cost of, there is a, they giving a sum. So risk free rate 6%, risk market return always is more. Why? Because that is a risk is also be more. ठीक है, मैंने बताया था रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा. रिटर्न क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो तुमने एडिशनल रिस्क लिया है तो उसका तुमको वो रिवॉर्ड है. इट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ गेटिंग और टेकिंग अ एक्स्ट्रा रिस्क. ठीक है. Then also cost of retained earning. Cost of retained earning is K R divided by E divided by P. Earning divided मतलब इक्विटी का फॉर्मूला सेम होगा. 1 माइनस टैक्स 1 माइनस B मतलब ब्रोकरेज रेट इंटू मल्टीप्लाइड विद 100. फॉर्मूला सेम हो रहा है. ठीक है, जैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, सेम है, बस और कुछ नहीं. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल में सेम. देखो इक्विटी में क्या हो रहा था, इक्विटी में क्या हो रहा था, ऊपर था डिविडेंड, हियर ऑल्सो दे गिविंग द डिविडेंड. मगर देखो इतना पार्ट चेंज कर दिया. क्यों चेंज कर दिया? सपोज तुमने यू इशूड अ प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल इन अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार और वेदर एट प्रीमियम. मतलब मान लो मैं तुमने 100 का माल 90 में रिडीम मतलब इशू किया है, मतलब 10 रुपीज़ डिस्काउंट देके तुमने बोला है कि मैं 90 में इशू कर रहा हूँ, मैं 1 साल बाद तुमको 100 वापस कर दूंगा. तो प्लस तुमने तो ये 10 रुपया कम लिया, तो 10 रुपया कम लिया, प्लस मान लो तुमने उसको बोला मैंने तुमको जैसे इंटरेस्ट मतलब 10%, मान लो 10% प्रेफरेंशियल, तो तुमने मान लो 10 रुपया उसको इंटरेस्ट भी दिया. तो तुमने तुम्हारा एक्चुअली कॉस्ट कितना था, ऊपर क्या रखते हैं कि कितना कॉस्ट गया, इक्विटी शेयर में कितना कॉस्ट गया था, सिर्फ पर्टिकुलर वो डिविडेंड पार्ट और अर्निंग पार्ट. हियर देखो तुमने इंटरेस्ट तो पार्ट गया ही है, मगर देखो तुमने एडिशनल 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया था. 10 रुपया एक्स्ट्रा मतलब 10 रुपया तुमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है कि वो डिफरेंस जो इशू और जो तुमने रिडीम किया उसका डिफरेंस तुमको वो भी देना पड़ रहा है. तो दैट इज पर्टिकुलर. तुमने टोटल तुम्हारा यहाँ पर कॉस्ट कितना गया देखो, 10 प्लस 10 10 प्लस 10 20 रुपया तुम्हारा चला गया. अब मान लो ये 10 रुपया तुमने 10 मान लो तुम्हारा डिविडेंड का जो मतलब तुमने जो प्रेफरेंशियल इशू किया है उसको तुमने 2 साल में तुम रिडीम करोगे. ठीक है, तो अब 2 साल में जब रिडीम करोगे तो ये 10 जो एक्स्ट्रा तुमने यहाँ पर पे किया था, तो ये तो 1 साल का खर्चा नहीं है ना. तुम क्या करोगे, 5-5 करके बुक करोगे 2 साल का. तो दैट्स वाई इट इज डिवाइड बाई 2, दैट इज नंबर ऑफ ईयर. यहाँ पर देखो मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोफिट, मतलब जितने में तुम दोगे एंड जितना में तुमको मिला है, नेट प्रॉफिट मतलब मिला है इशू करके, डिवाइड बाई एन, दैट इज द नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कितने साल में हम इक्वली खर्चे को डिवाइड कर देंगे 2 करके, तो 1 साल का मिल जाएगा. यार ये 10 तो 1 साल का है, मतलब हर साल हम इंटरेस्ट तो एक ही देंगे. पर्टिकुलरली वी कैलकुलेटिंग फॉर 1 ईयर. ठीक है, तो 1 साल का जितना खर्चा मतलब कॉस्ट होगा, हर साल का कॉस्ट सेम ही होगा. डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में ये दोनों का एवरेज ले लिया है. ठीक है, मतलब एक मतलब वहाँ पर क्या मार्केट प्राइस था, मगर यहाँ पर दोनों का एवरेज लिया है फॉर सेफ्टी पर्पज और मेकिंग द कैलकुलेशन मोर एक्यूरेटली. ठीक है, और कुछ नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट इज अ कॉस्ट ऑफ डेप्ट. कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला देखो, फर्स्ट इज इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल, सेम है, इनटू 100.
और अगर मतलब उसमें टैक्स का एलिमेंट हुआ तो टैक्स का एलिमेंट हमको लेस करना पड़ता है, क्योंकि अब अगर तुम देखोगे तो पहले आता है क्या, EBIT, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उससे हम लेस करते, मान लो सब एडजस्ट कर दिया, उसके बाद हम इंटरेस्ट लेस करते हैं, उसके बाद क्या मिलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद हम टैक्स लेस करते हैं, तो व्हाट शुड वी गेट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मान लो ये जो टैक्स का बेनिफिट है वो तो इंटरेस्ट में मिल रहा है ना। देखो टैक्स कितने % पे देना हो, मतलब अगर मैं इसमें फिगर पुट करूँ, मान लो 1000 है, इंटरेस्ट मान लो 100 है, तो आ गया 900। 10% मान लो, 20% टैक्स है या 10% टैक्स है, मान लो 10% टैक्स है, तो टैक्स हो गया 90, तो कितना आया 810, ठीक है। तुम अब देखो यहाँ पर ये जो 90 टैक्स हुआ ये किससे कैसे हुआ, ये इससे हुआ, तो 900 में गया है, क्यों 900 कहाँ से आया, ये 100 रुपया लेस हुआ। तो तुम अगर देखोगे अगर ये 100 रुपया लेस नहीं होता तो क्या होता, ये 100 होता, मान लो कोई 1000 होता, मान लो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो टैक्स होता कितना, यहाँ पर 100 होता टैक्स, और यहाँ पर कितना होता 900। तो देखो ये जो दो अमाउंट है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 100 है, तो 10 रुपया का सेविंग्स हुआ ना इंटरेस्ट पे करने से। तो दैट्स वाई वी ऑल मतलब इंटरेस्ट के साथ हम टैक्स लेस करते हैं, क्योंकि तुम जितना इंटरेस्ट पे करोगे तुम्हारा टैक्स का उतना ज़्यादा सेविंग्स होता है, ठीक है। और उतना ज़्यादा तुम्हारा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। वो कैसे होगा नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे हम कि इंटरेस्ट ज़्यादा देने से कैसे रिटर्न ऑफ ऑन इक्विटी इंक्रीज होता है। तो मेनली देखो देयर इज ए इफेक्ट ऑफ टैक्स इन द पर्टिकुलर इंटरेस्ट यू पेड against the issue of debenture. That's why they're taking the effect of that particular tax, interest minus 1 minus tax rate, ठीक है। और अगर वो रिडीम कर रहा है कि देखो तुम्हारा रिडीम कर रहा है, बोल रहा है कि ये मान लो 100 में इशू करके 2 साल या 4 साल बाद मान लो 150 में रिडीम कर रहा है, तो वो रिडीम अगर करेगा तो सेम होगा जो प्रेफरेंस शेयर में हुआ था कि इंटरेस्ट तो एक कॉस्ट होगा ही, और जितना कम और ज़्यादा ले रहा है तो वो भी तो एक कॉस्ट है। मान लो 150 दे रहा है, 100 ले रहा है और 150 रीपे करेगा, तो 50 एडिशनल पे कर रहा है 2 साल के लिए मान लो, तो डिवाइड बाई 2 25 बुक एज ए एक्सपेंसेस फॉर ईच ईयर, ठीक है। और नीचे प्रिंसिपल रहेगा, मतलब कितने में कितना देना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा लास्ट में आ रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मान लो व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म। मतलब फर्म का टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। For example, you have a debt, you have a equity, you have a preference share, you have a also retained earnings. So there is a individual cost of capital of individual items. So what about the overall cost of that particular firm, and how should you compare that particular cost with the investment that you return on investment that you get from your business? कैसे करोगे तुम अगर उसका ओवरऑल कॉस्ट तुमको पता नहीं चलेगा, तो एक एक करके तुम कंपेयर नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं किसी भी फर्म का, एंड दिस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्चुअली कंपेयर्ड विद द रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कितना हमारा खर्चा लगा, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आया, ठीक है। तो नाउ द टर्म्स वेटेड, व्हाई शुड वी कॉल द वेटेड, नॉट ओनली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड का कहना ये है, मान लो किसी भी कंपनी में 10 लाख का टोटल कैपिटल है, उसमें से 1 लाख इक्विटी से आया, 5 लाख प्रेफरेंस से आया और 4 लाख मान लो डिवेंचर से आया। तो देखो 10 लाख में मतलब देयर इज ए मल्टीपल वेट, मतलब कितना कैपिटल है उसमें 40%। मान लो यहाँ पर देखो ना, एक एग्जाम्पल दिया है, देखो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है 8,40,000, प्रेफरेंस शेयर इज 60,000, डिवेंचर इज 10 lakhs, and return earning is 1 lakh.
तो देखो टोटल कैपिटल इज 20 lakhs, ठीक है, मगर दे ऑल्सो गिविंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर 15%, 13%, 7%, 10%। मगर अगर तुम देखोगे ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है इट इज गिवन फॉर ए इंडिविजुअल फंड। मान लो 15% इज फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर तुम इसको लेके एवरेज कर दोगे तो द फिगर दैट शोइंग इज नॉट करेक्ट और नॉट ट्रू एंड फेयर, गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट द ट्रू कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। तो इसलिए वी शुड यूजिंग द वेटेड एवरेज। मान लो 20 lakhs में से 8,40,000 कितना परसेंट इक्विटी यूज कर रहा है वो कंपनी, दैट इज 42%। 20 lakh में से 8,40,000 मतलब 8,40,000 डिवाइड बाई 20 lakhs into 100 मतलब 42%। आउट ऑफ टोटल कैपिटल 42% is belonging to the equity share capital. Again, out of total capital 3% is belonging to the preference shareholder. Out of total capital 50% is belonging to the debenture holder, and out of total capital 5% is belonging to the retained earning. Now what should you do? You just multiply that particular weight with the individual cost of capital after tax and you get a overall weighted average cost. देखो 15%, 100% कॉस्ट, मतलब 15% जो यहाँ पर कॉस्ट दिया इट इज फॉर 100% कैपिटल, बट आउट ऑफ 100% ओनली 42% कैपिटल इज यूजिंग द 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टोटल कैपिटल में से 42% जो कैपिटल है वो ओनली यूज कर रहा है 15% वाला कैपिटल। तो इसलिए दैट इज 15% इंटू 42%। ऐसे मल्टीप्लाई करके हम टोटल जब कर देंगे तो ये जो मिलेगा उसको हम कहेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड वी सिंपली दैट कंपेयरिंग दैट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विथ आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना मिला है हम लोग को, कंपेयर करेंगे। अगर कॉस्ट कम है रिटर्न ज़्यादा है तो इट इज़ वेरी मच गुड फॉर द कंपनी एज वेल एज शेयर होल्डर, एंड अगर उल्टा हुआ तो इट इज़ वेरी मच बैड एंड इट रिप्रेजेंटिंग द इनएफिशिएंट financial management or inefficient overall company's management is inefficient it representing. तो this is total things। इसमें और भी फॉर्मूला दिया है, मतलब है, ठीक है, मगर in that particular our syllabus they given only that much of formula and I think it is more than enough। and यहाँ पर जो सम दिया हुआ है एकदम सिंपल है, there is a no complication। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन श्योर व्हाट्सएप मी, मगर ये फॉर्मूला में बेस है, ठीक है। अगर तुम फॉर्मूला याद करोगे, एक या दो फॉर्मूला याद करने से आई थिंक तुम्हारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था। थैंक्स अ लॉट एंड दैट्स अबाउट इट। लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, बाय।